ملتان کے ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی درجنوں ادویات نایاب ہو چکی ہیں۔ ادویات کی شدید قلت سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شوگر اور دمہ سمیت دیگر بیماریوں کے ادویات مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں۔ ملتان کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی درجنوں ادویات شارٹ۔ ادویات کی شدید قلت سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ مارکیٹ میں شوگر اور دمہ سمیت دیگر بیماریوں کی ادویات نایاب۔ انسولین کی مختلف اقسام، فلیجل ٹیبلٹ، کیٹوسٹیرل ٹیبلٹ، اٹارکس ٹیبلٹ، آئی ڈراپس، ٹیگرال ٹیبلٹ، ایپرین اور کیوبران ٹیبلٹ مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ سانس کے امراض کے تمام سپرے، زائنوسین نیزل سپرے کی بھی شدید قلت ہے۔ میڈیکل سٹور مالکان کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ کمپنی ادویات نہیں بنا رہی جبکہ موسمی بیماریاں عام ہیں۔ شارٹیج کا سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے، ٹھیک ہے، تو اب انتظامیہ ہی جانتی ہے، صحیح ہے، تو کیا معاملہ ہے، صحیح ہے، ڈسٹریبیوشن مینوفیکچرر جانتا ہے اس بارے میں کہ کیا وجہ ہے۔ ہمارے پاس تو جب شارٹیج ہوتی ہے ہم کسٹمر کو یہی کہتے ہیں کہ پیچھے سے چیز نہیں آ رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جس کے پاس ادویات ہیں وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ یہاں پہ ابھی میڈیسن بہت ساری شارٹیج ہیں، پڑی نہیں مل رہی ابھی۔ ایک تو مہنگی بھی بہت ہے تو مل بھی نہیں رہی، جس سے عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے بڑا۔ تو میری تو حکومت سے گزارش ہے کہ یہ تاکہ ایک تو ادویات سستی کرے، ایک تو انسان کا کھانا پینے کا گزارا بہت مشکل ہے اور ادھر سے میڈیسن بہت نہیں مل رہی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ادویات کی شدید قلت دور کرنے میں تاحال ناکام دکھائی دیتی ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ہمراہ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں جان بچانے والی بیشتر ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ تمام مرگی اور نفسیات کی ادویات مارکیٹ سے بالکل غائب ہو چکی ہیں۔ بہاولپور میں دمہ اور الرجی کے مریض رول گئے۔ شہر میں دمہ کی ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ دمہ اور الرجی میں استعمال ہونے والی وینٹولین گولیاں اور انہیلر مارکیٹ سے غائب ہیں۔ شہر میں دمہ کی متبادل ادویات بھی نایاب ہیں۔ فارماسسٹ کہتے ہیں کہ دمہ کے مریض انہیلر نہ ملنے کے باعث آکسیجن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں مرگی اور نفسیات کی ادویات ٹیگرال اور ایپیوال بھی شارٹ ہو گئی ہیں۔ انسولین کی قلت بھی سر اٹھانے لگی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مرگی کے مریضوں کو بھی ادویات کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انسولین بھی مارکیٹ سے جزوی طور پر غائب ہے۔ دمہ کے مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیلر نہیں مل رہا، مرض کی شدت کو کنٹرول کرنے میں مشکل کا سامنا ہے۔ بہت سارا مسئلہ ہو رہا ہے، کم سے کم مجھے آج ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، مجھے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، جو کھاتے ہیں اس کی نیمر بدل بھی نہیں مل رہی، جو نیمر بدل ہے وہ بھی شارٹ ہو گئی ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، تنگ ہوں۔ میں انتظامیہ سے یہی کہتا ہوں کہ اس کمپنی والوں کو کہیں ریکویسٹ کریں، ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق دمہ کی ادویات ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے آنا بند ہو گئی ہیں۔ مریضوں کی بڑی تعداد متبادل ادویات سے بھی محروم ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا اور خسرہ کے بعد ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے۔ ملتان میں خسرہ سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ بہاولپور میں نمونیا سے 2 بچے جان کی باز ہار گئے ہیں، جبکہ موسمی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی مچھر نے بھی ڈنگ تیز کر لیے ہیں۔ ملتان میں وبائی مرض خسرہ جان لیوا بن گیا۔ چلڈرن کمپلیکس میں خسرہ سے ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ خسرہ سے جاں بحق بچوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ چلڈرن کمپلیکس میں 24 گھنٹے کے دوران خسرہ کے 18 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں اس وقت خسرہ کے 53 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق خسرہ کے مریضوں کا آئسولیشن وارڈ میں علاج جاری ہے۔ ادھر بہاولپور میں نمونیا کے وار کم نہ ہو سکے، شہر کے ہسپتالوں میں نمونیا کے باعث مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ سر صادق ہسپتال میں 1 بچی اور وکٹوریہ ہسپتال میں 1 بچہ جاں بحق ہوا۔ شہر میں رواں ہفتے نمونیا سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 1 جنوری سے اب تک جاں بحق بچوں کی تعداد 101 ہو گئی ہے۔ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 6 بچے رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد نمونیا متاثرہ مریضوں کی تعداد 1720 تک پہنچ گئی۔ بہاولپور میں موسمی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے شعبہ میں 8 مریض لائے گئے۔ سر صادق ہسپتال میں 7، وکٹوریہ ہسپتال میں 1 مریض داخل کروا دیا گیا۔ ڈینگی اسکریننگ کے لیے خون کے نمونے لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ رواں سال ڈینگی کے 8 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت پنجاب کو مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے احسن اقدام۔ رحمانہ خان میں گھی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کمی کر دی گئی۔ چینی بھی 10 روپے فی کلو سستی کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے کوشاں، شے خورد کی قیمتیں بتدریج کم ہونے لگیں۔ رحمانہ خان میں گھی اور چینی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ گھی 20 روپے کلو سستا ہو کر 400 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ چینی 10 روپے کمی کے بعد 135 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ معروف بزنس مین چودھری مقصود سندھو کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور کریانہ ایسوسی ایشن مل کر ڈیمانڈ اور سپلائی کے ایشوز کو حل کر رہی ہے تاکہ مہنگائی سے پریشان شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ دکانداروں
के मुताबिक आइंदा दिनों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मजीद कमी आएगी, जिससे आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर हो सकेगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में सरकारी मराकज पर गंदम खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उधर जामपुर में किसान बोर्ड ने गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। जनूबी पंजाब में सरकारी मराकज पर गंदम खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। हासिलपुर की मार्केट में गंदम 3200 से 3400 रुपए फी मन है। किसान अपनी साल भर की कमाई गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गला मंडी में गंदम की खरीदार न होने के बराबर हैं। किसान कहते हैं कि हुकूमत गंदम खरीदे ताकि बर वक्त अगली फसल को काश्त किया जा सके। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कहना है कि हुकूमती अहकामात आते ही गंदम खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। फकीर वाली में भी महकमा फूड पंजाब ने ताल गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। किसान औने पौने रेट पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। किसानों का कहना है कि हुकूमत गोदाम ओपन करे और सरकारी रेट पर गंदम खरीदे। मार्केट में गंदम का रेट 3300 से 3400 रुपए फी मन है। कम रेट पर गंदम फरोख्त करने से अखराजात भी पूरे नहीं होते। दूसरी तरफ फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि हुकूमती हिदायत मिलते ही खरीदारी शुरू कर देंगे। जामपुर में किसान बोर्ड ने गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने जिला भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला में रैली, जुलूस, मुजाहरे, जलसे, धरने पर पाबंदी होगी। दफा 144 का नफा 25 अप्रैल से 1 मई तक रहेगा। दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल देने पर सदर किसान बोर्ड ख्वाजा मोहसिन रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। ये आपको आगाह करते चले, मियावाली के फूड सेंटर्स वीरानियों का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि गंदम की कटाई आखिरी मराहल में पहुंच गई है। मुतादिद काश्तकार गंदम की फसल उठा चुके हैं, मगर पंजाब हुकूमत अभी तक गंदम की खरीदारी बारे कोई फैसला नहीं कर सकी। मियावाली में महकमा फूड पंजाब के गंदम खरीदारी मराकज वीरान। हुकूमत अभी तक गंदम खरीदारी बारे कोई फैसला नहीं कर सकी। परेशानी से दो चार काश्तकार कहते हैं कि फूड सेंटर्स पर धक्के खा रहे हैं। ताहाल बारदाना जारी नहीं किया गया। हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो साल भर की मेहनत और खर्च किए गए लाखों रुपए जाया हो जाएंगे। भारी मिकदार में गंदम को स्टोर करना हमारे बस का काम नहीं। हम तो आजकल रोजाना आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो कोई पॉलिसी नहीं नजर आ रही। पहले जो आई थी तो वो वापस चली गई है। अभी हमारी गंदम निकली हुई है, कोई पता नहीं चल रहा अभी हम इसका क्या करें। पुरानी जो पॉलिसी थी वो तो वापस चली गई, अभी नई पॉलिसी नहीं आई फिलहाल घड़ी में। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू करे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियावाली। जनूबी पंजाब में कई तरक्याती मंसूबे हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। ये मंसूबे सरकारी फंड्स न मिलने के बाद साल से ताखीर का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत रुके हुए मंसूबों को फौरी मुकम्मल करवाए। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम भी ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। गर्दो गुबार से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ताजरों का कहना है कि महकमा पंजाब हाईवे 2.5 साल में भी फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल नहीं कर सका। फ्लाईओवर मुकम्मल न होने से कारोबार तबाह हो गए हैं। हुकूमत फ्लाईओवर की तामीर जल्द मुकम्मल करवाए। उधर बहावलपुर में खेलों के कई मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। पंजाब का पहला सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 2 साल बाद भी नामुकम्मल है। चीमा टाउन इंडोर जिम्नेजियम 16 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को मुंतकिल हुआ। जिम्नेजियम के लिए गुज़िश्ता साल 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फवाद अनवर का मौक़िफ़ है कि एथलेटिक ट्रैक एलसीज बंद होने की वजह से ताखीर का शिकार है। चीमा टाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रवा साल मंजूरी के लिए पेश होगा। रहीम यार खान में भी कई तरक्याती मंसूबे फंड्स की अदम दस्तियाबी के नजर हो गए। 9 अरब 90 करोड़ के फंड्स ताहाल जारी न किए जा सके। शेख सैद अस्पताल का सर्जिकल टावर भी 4 साल से तामीर का मुंतज़िर है। चौक बहादुरपुर बाईपास रोड के लिए 425 मिलियन, इलाहाबाद लियाकतपुर 2 रोया सड़क के लिए 125 मिलियन, तहसील लियाकतपुर की सड़कों की तकमील के लिए 170 मिलियन, खानपुर रेलवे फ्लाईओवर के लिए 180 मिलियन, सादिकाबाद की सड़कों के लिए 4400 मिलियन रुपए दरकार हैं। मुल्तान में मर्सिन यूनिवर्सिटी हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। एडमिन ब्लॉक की तामीर फंडिंग के मसाइल की वजह से ताखीर का शिकार है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि एडमिन ब्लॉक बनने से मजीद नए क्लासरूम्स दस्तयाब होंगे। मुल्तान शहर के कई तालीमी प्रोजेक्ट ताहाल नामुकम्मल। एमरसन यूनिवर्सिटी में नए एडमिन ब्लॉक की तामीर फंड्स रुकने की वजह से ताखीर का शिकार। एडमिन ब्लॉक से मुंसलिक शोबाजात के इंतजामी और तालीमी मामलात मुतासिर होने लगे।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर आफ्ताब खाकवानी का कहना है कि इस स्कीम में एडमिन, एकेडमिक और लाइब्रेरी ब्लॉक, लिफ्ट, बस गैराज समेत दीगर कई अहम सहूलियात शामिल हैं। यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हुकूमती फंडिंग की बर वक्त मंजूरी नहायत जरूरी है। हमारा प्रोजेक्ट अनफंडेड ना होता तो इस वक्त ये मुकम्मल हो चुका होता, हमारे पास मजीद अच्छी लैब्स मौजूद होती, वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट मौजूद होता, कंट्रोलर ऑफिस, ट्रेजरर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस होता, हम स्टूडेंट्स के मसाइल को आसानी से हल कर सकते। यूनिवर्सिटी स्टाफ का कहना था कि एडमिन ब्लॉक न होने की वजह से एकेडमिक ब्लॉक में काम करने पर मजबूर हैं। तलबा तालबात की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। स्कीम्स की फंडिंग बहाल होने से यूनिवर्सिटी के तालीमी और इंतजामी मामलात को मजीद बेहतर किया जा सकेगा। इस वक्त जो हमारे मैनेजमेंट के लिए जो हम दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो हमारे एकेडमिक ब्लॉक का हिस्सा हैं। जब हमारा एडमिन ब्लॉक मुकम्मल हो जाएगा, उसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी, तो ये जो हम रूम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी क्लास रूम बन सकते हैं, इनमें हमारे सेमिनार रूम बन सकते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह दिन ब दिन तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारे पास इस वक्त जगह की कमी है, क्लास रूम्स हमारे पास कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अभी फॉल में मजीद हमारे पास एडमिशन आएंगे तो और ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने गुज़श्ता हफ्ते अमरसन यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब से रुके हुए प्रोजेक्ट्स के फंड्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ये आपको बताएंगे मुल्तान वासा इंतजामिया की गफलत के बाद शहरी परेशान हैं। कचहरी चौक से एमडीए चौक तक जाने वाली रोड सीवरेज के पानी से भर गई है। मजीद तफसीलात ओनाबाद से जानते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्तान शहर में वासा इंतजामिया की जो गफलत है उसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती है। इस वक्त जो हम अपना कचहरी चौक से एमडीए चौक की तरफ जो मेन रोड जा रहे हैं उस पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेन रोड के ऊपर जो है सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से जो आवाम है काफ़ी परेशान दिखाई देती है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जो है इस हवाले से कई बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई देती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं थाना सदर जो है वो भी यहीं पर ही इसी रोड के ऊपर मौजूद है। थाना सदर जो ट्रैफिक आती है या जितने भी शहरी थाना सदर की तरफ आना चाहें उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि जो सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड के ऊपर जो है जमा है तो उस हवाले से आवाम थाना सदर का भी रुख नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर दिखाई देती है। शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वासा इंतजामिया जो है उसकी गफलत के बायस मुल्तान शहर के कई मेन रोड्स ऐसे हैं जहां पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाता है रात गए। आप देख सकते हैं अभी रोड के मनाजिर के रोड पर जो ट्रैफिक है ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है। कचहरी चौक से एमडीए चौक की तरफ जो ये मेन रोड जा रहा है मगर इस रोड पर आप हालत देखें कि सारा रोड जो है गंदे पानी से भर चुका है। मगर वासा इंतजामिया की गफलत के बायस यहाँ पर जो वासा इंतजामिया है रोड को साफ ना कर सकी जिसकी वजह से थाना सदर के बाहरी रोड पर जो है गंदा पानी जमा है। जिला कौंसिल भी जो है इसी रोड पर मौजूद है। जिला कौंसिल के आगे भी जो है गंदा पानी सीवरेज का जमा हो चुका है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सारा दिन भी जो है ये सूरत हाल रही इस रोड की और रोड पर गंदा पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है शदीद मुतासिर रही। लोग जो है यहाँ से गुजरने से कतराते हैं। मेन रोड है और जितने भी लिंक रोड है वहां पर जो है ट्रैफिक फंस जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। मगर वासा इंतजामिया की गफलत का ये मुंह बोलता सबूत है कि मुल्तान शहर के मेन रोड जो है जहां पर थाना सदर लगता है, जिला कौंसिल लगती है, आगे जाकर कचहरी भी इसी रोड पर है। और इस रोड का हाल ये है कि गंदा सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नाला है वासा इंतजामिया पर क्योंकि वासा इंतजामिया जो है मुल्तान के मेन रोड्स साफ करने में नाकाम दिखाई देती है। आप देख सकेंगे, मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से मुतासिर दिखाई देती है। पुलिस की भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी रोड से गुजरती हैं। पुलिस मोबाइल्स भी इसी रोड से थाना सदर से बाहर आती है। मगर आप देखें हालात इस रोड के ये हैं कि गंदा सीवरेज का पानी
पानी जमा होने की वजह से जो है यहाँ शहरी परेशान है, पुलिस हुकाम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, मगर वासा इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कुछ मुतहरिक दिखाई नहीं देती। वासा इंतज़ामिया की गफलत के बाइस जो है यहाँ पर सारा गंदा पानी रोड पर जमा है और इस हवाले से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि वासा इंतज़ामिया से कि रोड जो है मुल्तान शहर के क्लियर करवा दिए जाए, मेन रोड्स पर जो गंदा पानी जमा हो जाता है तो उन्हें जो है क्लियर करवाया जाए, रोड्स को साफ किया जाए और ताकि जो ट्रैफिक मसाइल हैं हल हो सकें। अभी आप देखिए कि जिस तरह से अभी पुलिस मोबाइल्स जो हैं थाना सदर के अंदर गई हैं और पुलिस मोबाइल्स को भी अंदर जाना में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ ज़िला कौंसिल भी इसी रोड पर वाक़ है, कई स्कूल्स जो हैं इस रोड पर वाक़ है, कई होटल्स जो हैं, फास्ट फूड पॉइंट्स हैं इसी रोड पर वाक़ है, मगर ये सारा रोड जो है गंदे पानी से भर चुका है। मगर वासा इंतज़ामिया इस हवाले से नाकाम दिखाई देती है रोड को क्लियर करने में, और जितना भी ये गटर का गंदा पानी जमा है तो लोगों के जो मोटरसाइकिल पे जितने मोटरसाइकिल सवार गुजरते हैं उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लोग जो है रात गए जब इस रोड से गुजरते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है और दूसरी जानिब जो गंदा पानी जमा हो जाता है रोड पर वो एक वासा इंतज़ामिया का नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हुकाम से यही गुजारिश है, यही मुतालबा है कि रोड को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए, अवामी मसाइल हल किए जाएं। थाना सदर के बाहर जितना गंदा सीवरेज का पानी जमा है, जिला कौंसिल के बाहर जो गंदा पानी जमा है, मेन रोड के ऊपर जो ये गंदा पानी जमा है जल्द से जल्द इसे क्लियर करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नवाज।